السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے بے قصور افراد کو نشانہ بنانے کے لیے اتر پردیش میں انسداد گاؤ ذبیہ قانون کے غلط استعمال اور برآمد شدہ گوشت کو گائے کا ثابت کرنے کے لیے فورنسک شواہد کی کمی پر خدشات ظاہر کیے ہیں۔ ایک شخص رحیم الدین کو جو مبینہ طور پر گاؤ ذبح میں ملوث تھا، ضمانت منظور کرتے ہوئے جسٹس سدھارتھ نے اپنے حکم میں کہا کہ انسداد گاؤ ذبیہ قانون 1955 کا غلط استعمال بے قصور افراد کو جیلوں میں پہنچانے کا سبب بن رہا ہے۔ ہائی کورٹ نے اپنے حکم میں کہا کہ اس قانون کا غلط استعمال بے قصور افراد کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ جہاں کہیں گوشت برآمد ہوتا ہے، اسے عام طور پر جانچ کے بغیر یا فورنسک لیبارٹری کے تجزیے کے بغیر ہی گائے کا گوشت کہا جا رہا ہے۔ ملزمین ایک ایسے جرم کے لیے جس کا ارتکاب انہوں نے کیا ہی نہیں تھا، مسلسل جیل میں رہتے ہیں۔ بی جے پی رکن پارلیمنٹ ساکشی مہاراج نے پھر ایک مرتبہ متنازع بیان دیا ہے۔ اس بار انہوں نے کہا ہے کہ اتر پردیش میں شمشان گھاٹ اور قبرستانوں کے لیے جگہ کا تعین دو بڑے فرقوں کی آبادی کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مردے دفنانے کے بجائے نذر آتش کرنا شروع کر دیں۔ اناؤ پارلیمانی حلقے کی بنگارمو اسمبلی نشست پر ضمنی الیکشن ہو رہا ہے۔ بی جے پی امیدوار کی تائید میں جلسہ عام سے خطاب میں ساکشی مہاراج نے کہا کہ ملک میں 2 تا 2.5 کروڑ سادھو ہے۔ اگر ہم نے ان سبھی کے لیے سمادھیاں بنانی شروع کر دیں تو تصور کریں کہ کتنی اراضی درکار ہوگی۔ اسی طرح ملک میں 20 کروڑ مسلمان ہیں اور ان سبھی کو دفنانا ہو تو کتنی زمین دستیاب ہے، یہ سوچنا پڑے گا۔ ساکشی مہاراج نے یہ بھی کہا کہ قانون بننا چاہیے کہ دفنانے کے لیے کسی کو بھی زمین نہیں دی جائے گی۔ سبھی فرقوں کو اپنے مردوں کو نذر آتش کرنا ہوگا، ورنہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ملک میں کھیتی کے لیے بھی زمین نہیں بچے گی۔ بی جے پی قائد نے کہا کہ ہمارے صبر و تحمل کو نہ آزمایا جائے۔ مرکز کی این ڈی اے حکومت پر سخت تنقید میں کانگریس صدر سونیا گاندھی نے الزام عائد کیا کہ ملک کے جمہوری اداروں کو سیاسی مخالفین کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایک انگریزی اخبار میں آرٹیکل میں سونیا گاندھی نے لکھا کہ جمہوری نظام حکمرانی کے تمام ستونوں پر حملہ ہو رہا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت چوراہے پر کھڑی ہے، معیشت بڑے بحران میں ہے، جمہوری نظام حکمرانی کے تمام ستون پر حملے ہو رہے ہیں، اظہار رائے کے بنیادی حق کو منظم طور پر معطل کیا جا رہا ہے، اختلاف رائے کو دہشت گردی یا ملک دشمن سرگرمی قرار دیا جا رہا ہے، کئی اداروں کو جو شہریوں اور سماج کے حقوق کی برقراری کے لیے بنے ہیں دبایا جا رہا ہے۔ بہار میں 71 اسمبلی حلقوں کے لیے انتخابی مہم پیر کو ختم ہو گئی، جہاں پہلے مرحلے کے تحت 28 اکتوبر کو رائے دہی ہونے والی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے این ڈی اے کی قیادت کرتے ہوئے 3 ریالیوں سے خطاب کیا، جہاں انہوں نے ووٹر سے کہا کہ چیف منسٹر نتیش کمار کو ووٹ دیتے ہوئے اقتدار پر واپس لائیں۔ سابق صدر راہل گاندھی نے جن کی پارٹی لالو پرساد یادو کی آر جے ڈی اور 3 بائیں بازو جماعتوں کے ساتھ اتحاد کرتے ہوئے انتخابات لڑ رہی ہے، 2 ریالیوں سے خطاب کیا۔ پہلے مرحلے میں مجموعی طور پر 1066 امیدوار میدان میں ہیں، جن میں 114 خواتین ہیں۔ چاشمبے کو پہلے مرحلے کی رائے دہی میں تقریباً نصف درجن کابینی وزراء کی قسمت کا فیصلہ ہوگا۔ مہاراشٹر بی جے پی کے لیڈر آشیش شیلار نے مہاراشٹر کے چیف منسٹر ادھو ٹھاکرے کو مشورہ دیا کہ انہیں آر ایس ایس سے ہندوتوا سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ کانگریس اور این سی پی کے ساتھ حکومت سازی کرنے کے بعد اب ان کے ہندوتوا میں ملاوٹ ہو گئی ہے۔ پنجاب کے عوام نے مذہبی تہوار دسہرہ کے موقع پر وزیراعظم نریندر مودی کے پتلے جلائے۔ پنجاب میں کسانوں نے اتوار کو روایتی تہوار دسہرہ منایا۔ اس دن ہندو لوگ راون کے پتلے جلاتے ہیں۔ تاہم گزشتہ روز تہوار کی خاص بات یہ رہی کہ پنجاب کے عوام نے راون کے بجائے مودی کے پتلے جلائے ہیں۔ پنجاب کسان یونین نے ریاست کے مختلف شہروں بھٹنڈا، ترن تارن، فیروز پورہ، امرتسر وغیرہ میں دسہرے کے موقع پر مودی کے پتلے مفت تقسیم کیے تھے۔ سکھوں کی سیاسی پارٹی شرمنی اکالی دل مرکز میں حکمراں اتحاد این ڈی اے سے علیحدہ ہو گئی ہے۔ ہندوؤں کا ماننا ہے کہ راون کو جلانے سے ان کے سارے گناہ بھی جل جاتے ہیں اور وہ مصیبتوں سے چھٹکارا پا لیتے ہیں۔ کسان یونین کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ مودی ہندوستان کے لیے سب سے بڑا شیطان اور دسہرے کے موقع پر اس بڑے شیطان کو جلانے سے ملک میں سکون قائم ہوگا۔ واضح کہ پنجاب بھر میں اس وقت کسانوں کے مظاہرے اپنے عروج پر ہیں۔ مدھیہ پردیش کی سابق چیف منسٹر اما بھارتی نے آج الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس کی 15 ماہ کی سابق سرکار کو پردے کے پیچھے سے سابق چیف منسٹر دگ وجے سنگھ چلا رہے تھے۔ بی جے پی کی سینئر لیڈر اما بھارتی نے ضلع رائے سین میں ضلع کے سانچی اسمبلی حلقے میں واقع سانچیت میں انتخابی جلسے سے خطاب کیا۔ بی جے پی امیدوار پربھو رام چودھری کی حمایت میں منعقدہ جلسے میں اما بھارتی نے کہا کہ بڑے بڑے انتخابی وعدے کرنے والی کانگریس ریاست میں اقتدار میں آ گئی تھی، لیکن وہ وعدے پورے نہیں کر پائی۔ اما بھارتی نے کہا کہ برسر اقتدار آنے پر کمل ناتھ چیف منسٹر بن گئے، لیکن حقیقت میں حکومت دگ وجے سنگھ چلا رہے تھے۔ بالی ووڈ اداکارہ پائل گھوش، جس نے فلم ساز انوراگ کشیپ پر عصمت ریزی کا الزام عائد کیا تھا،
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया उठावले की पार्टी में शामिल हो गई है। मरकजी वजीर रामदास उठावले ने अदाकारा को अपनी पार्टी के ख्वातीन शोबे का नायब सदर मुकर्रर किया है। जम्मू कश्मीर की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को आज उस वक्त एक बड़ा धक्का लगा जब पार्टी के 3 सीनियर कायदीन बशमूल एक साबिक रुकन पार्लियामेंट ने पार्टी से अपने इस्तीफे का ऐलान किया। महबूबा मुफ्ती के नाम एक मुश्तरका मकतूब में साबिक MP TS बाजवा, वेद महाजन और हुसैन अली वफा ने कहा कि हम पार्टी में अदम इत्मीनान और घुटन महसूस कर रहे हैं, जिसने हमें पार्टी छोड़ने का कठिन फैसला लेने पर मजबूर किया है। वफा PDP के साबिक रियासती सेक्रेटरी थे और महाजन एक साबिक MLC हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने तुर्क अवाम से कहा है कि वो फ्रांसीसी अशिया का बाइकआउट करें। इस तरह शिद्दत पसंद इस्लाम के खिलाफ पेरिस के सख्त मौक़िफ़ की वजह से नाटो के इत्तेहादी मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में कशीदगी पैदा हो गई है। तैयब एर्दोगान ने टेलीविजन पर पेश की गई एक तकरीर के दौरान कहा कि जिस तरह फ्रांस में कहा गया है कि तुर्क अशिया ना खरीदी जाए, मैं यहाँ मेरे लोगों से कहता हूँ कि फ्रांसीसी अशिया मत खरीदो। कतर और कुवैत की सुपरमार्केट्स में भी फ्रांसीसी अशिया का बाइकआउट किया जा रहा है। अर्दन और दूसरे ममालिक में फ्रांसीसी अशिया की बाइकआउट की अपीलें की जा रही है। सऊदी अरब की उलमा कौंसिल ने एक बयान में कहा कि पैगंबरों की शान में गुस्ताखी से इंतहा पसंदों के एजेंडे की तकमील होगी। सरकारी न्यूज़ एजेंसी SPA ने उलमा कौंसिल के हवाले से कहा कि आलमी बरादरी के समझदार और आक़िबत अंदेश अफराद को चाहिए कि वो इस तरह की गुस्ताखियों की मजम्मत करें, क्योंकि इनका ताल्लुक इज़हार ख्याल या दानिशमंदाना सोच की आज़ादी से नहीं है। कौंसिल ने कहा कि इन तहक़ीरामेज़ तबसरों से इंतहा पसंदों की मुफ्त खिदमत होती है जो अवाम में नफरत फैलाना चाहते हैं। इस बयान में वजाहत की गई कि मजहब इस्लाम ने किसी भी पैगंबर की शान में गुस्ताखी से मना किया है और मजहबी शख्सियात पर तनकीदों से रोका है। बयान में मुसलमानों से कहा गया है कि वो बेमिसाल और भलाई के काम करते हुए पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का नमूना बने। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में फ्रांसीसी सफ़ीर को तलब करते हुए गुस्ताखाना कार्टून्स की इशात और इस्लाम व मुसलमानों के खिलाफ सदर इमानुएल मैक्रोन के बयानात पर एहतजाज किया। एक दिन कबल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया था कि मैक्रोन गुस्ताखाना कार्टून्स की इशात की मुदाफ़ियत करते हुए इस्लाम पर तनकीदें कर रहे हैं। मुराक़िश ने गुस्ताखाना कार्टून्स की मज़म्मत की। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने तौसीक़ की कि इसने इस्लामाबाद में फ्रांसीसी सफ़ीर को तलब करते हुए एक बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान इज़हार ख्याल की आज़ादी की आड़ में मुनज़्ज़म इस्लामोफोबिया की मुहिम की मज़म्मत करता है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने इस्लाम मुखालिफ मवाद हटाने के लिए फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग को ख़त लिखा है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इमरान खान ने फेसबुक के बानी के नाम ख़त में लिखा है कि फेसबुक होलोकास्ट की तरह इस्लाम मुखालिफ मवाद पर भी पाबंदी आयद करे। इस्लामोफोबिया मुखालिफ मवाद सोशल मीडिया बशमूल फेसबुक पर फैलाया जा रहा है। ऐसा मवाद नफरत, इंतहा पसंदी, तशद्दुद की हौसला अफजाई कर रहा है। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन के इस्लाम मुखालिफ बयानात के बाद फ्रांस के स्टार फुटबॉलर पॉल पोगिया ने फ्रांस की नेशनल फुटबॉल टीम से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस के वर्ल्ड कप जीतने वाले फुटबॉलर पॉल पोगिया ने फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन के इस्लाम मुखालिफ बयानात के बाद आइंदा फ्रांस की नुमाइंदगी न करने का फैसला किया है। फ्रांस की मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि पॉल पोगिया ने फ्रांसीसी सदर के बयानात को नापसंद किया था और वो इन बयानात को अपनी और फ्रांसीसी मुसलमानों की तौहीन समझते थे, क्योंकि फ्रांस में ईसाइयत के बाद इस्लाम दूसरा बड़ा मजहब है। तेलंगाना के रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्र KTR ने शहर हैदराबाद में 3 मुकामात पर 1152 डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह करते हुए इसको गरीब आवाम के लिए हुकूमत की तरफ से दशहरे का तोहफा करार दिया। तरक्की और बहबूद के मामले में रियासत तेलंगाना को मिसाली और काबिल फ़ख्र रियासत करार दिया है। KTR ने ज़ियागुड़े में 840, घोड़े की खबर में 192 और कट्टल मंडी में 120 डबल बेडरूम मकानात गरीब आवाम में तकसीम किए। इस मौके पर रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, रियासती वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री T श्रीनिवास यादव, मेयर हैदराबाद B राम मोहन के अलावा अरकान असेंबली और कॉरपोरेटर्स के अलावा ओहदेदार भी मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए KTR ने कहा कि रियासत तेलंगाना मुल्क की वाहिद रियासत है जहां गरीब अवाम के लिए हुकूमत की जानिब से मुफ्त डबल बेडरूम मकानात तामीर किए जा रहे हैं। 18,000 करोड़ रुपए के मसारिफ से रियासत में 2,75,000 डबल बेडरूम मकानात तामीर किए जा रहे हैं। खिदमत खल्क बड़ी इबादत है। रोते चेहरों पर मुस्कुराहटें वापस लाना, तबाहशुदा लोगों की ज़िंदगियों की असरनो शुरुआत में मदद करना, बीमारों का इलाज करना या करवाना, इन्हें अद्वियात फराहम करना, कमज़ोर व मजलूमों से ताउन करना, बेसहारों को आसरा मुहैया करना, तलबा व तालिबात की तालीमी ज़रूरियात की तकमील के लिए दस्त ताउन दराज करना कोई मामूली काम नहीं, बल्कि ये काम अल्लाह के वही बंदे करते हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफीक अता करते हैं। इस मामले में शहरियान हैदराबाद रोज़नामा सियासत एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खां, फैज़ आम ट्रस्ट और इसके सेक्रेटरी जनाब इफ्तिखार हुसैन के साथ इनके रुफ़क़ा खुश नसीब हैं। हालिया तूफ़ानी बारिश ने हैदराबाद और मुज़ाफ़ाती इलाक़ों में ख़तरनाक
तबाही मचाई और ऐसे कई खानदान हैं जिनकी जिंदगी भर की कमाई बेटियों का जहेज, साजो सामान, गाड़ियां, फर्नीचर, बिस्तर वगैरह बारिश की नजर हो गए। इन हालात में सियासत मिल्लत फंड और फैज़-ए-आम ट्रस्ट ने बारिश के मुतासरीन की हत्तल मक़दूर मदद का फैसला किया और फिर मुख्तलिफ इलाकों के मुतासरीन में अशिया ज़रूरिया की तक़सीम का आगाज़ किया। गुज़िश्ता रोज़ आबिद अली खां आई हॉस्पिटल में बतौर ख़ास मुतासरीन में अशिया ज़रूरिया पर मुश्तमिल किट्स की तक़सीम अमल में लाई गई। तेलंगाना पुलिस ने हल्के असेंबली दोबाग के बीजेपी उम्मीदवार रघुनंदन राव के एक करीबी रिश्तेदार के मकान से 18,67,000 रुपए जब्त कर लिए, लेकिन राव के हामियों ने पुलिस पर हमला करते हुए 18,67,000 रुपए के मुजमला 5,80,000 रुपए छीन लिए और फरार हो गए। पुलिस अहदेदार ने यह बात बताई। पुलिस कमिश्नर सिद्दीपेट ने कहा कि पुलिस ने एक शख्स अंजन राव के मकान से, जो रघुनंदन राव बीजेपी उम्मीदवार के रिश्तेदार बताए गए हैं, भारी रकम जब्त कर ली। बताया जाता है कि हल्का असेंबली दोबाग के ज़मनी इलेक्शन जो 3 नवंबर को मुकर्रर है, इससे कबल रायदहिंदों में तकसीम के लिए ये रकम मंगवाई गई थी। सदर बीजेपी तेलंगाना बंडी संजय कुमार को पुलिस ने इस वक्त गिरफ्तार कर लिया जबकि वो हैदराबाद से दोबाग जा रहे थे। गिरफ्तारी के दौरान बीजेपी कायद मामूली जख्मी हो गए और वो दर्द से कराहने लगे। गिरफ्तारी के वक्त कुछ देर के लिए हालात कशीदा हो गए। इस मौके पर सहाफ़ियों से बात करते हुए संजय कुमार हल्के दोबाग के ज़मनी इलेक्शन में बीजेपी उम्मीदवार रघुनंदन राव और इनके रिश्तेदारों के मकानात पर पुलिस धावों की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि इंतखाबात दोबाग में मुनक्किद हो रहे हैं और पुलिस बीजेपी उम्मीदवार के रिश्तेदारों के मकानात वाक़ सिद्दीपेट में धावे कर रही है। पुलिस की हरकत को नाकाबिल फ़हम करार देते हुए सदर रियासती बीजेपी ने कहा कि ये धावे इंतखाबी क़ानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने कहा है कि आने वाले GHMC इंतखाबात रियासती हुकूमत के डबल बेडरूम मकानात के वादे की बुनियाद पर मुनक्किद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मज़ीद तादाद में डबल बेडरूम मकानात की तकसीम से इनकी पार्टी को मज़ीद फ़ायदा होगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि जिन अफराद को मकानात नहीं मिले हैं वो अफराद बरहम होंगे। शहर में मीडिया से रस्मी बातचीत करते हुए किशन रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि TRS ज़ेर क़यादत रियासती हुकूमत तमाम अवामी मसाइल जैसे डबल बेडरूम मकानात की तामीर, कोविड-19 की रोकथाम और हैदराबाद के सैलाब में नाकाम हो गई है। उन्होंने दोबाग के ज़मनी इंतखाबात का हवाला देते हुए कहा कि वज़ीर फाइनेंस में मायूसी देखी जा रही है। बगैर हेलमेट बाइक चलाने वालों को अब कोई जुर्माना अदा करना नहीं पड़ेगा। जी हां, ये ऐलान साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से किया गया है। पुलिस ने कहा कि बगैर हेलमेट बाइक चलाने पर बाइक सवार को रोककर बाइक जब्त कर ली जाएगी और कहा जाएगा कि हेलमेट लाओ, अपनी गाड़ी ले जाओ। पुलिस का कहना है कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र यह फैसला किया गया है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि हेलमेट का इस्तेमाल न करने वाले हादसात का शिकार 55% बाइक सवार अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। जुर्माना आयद करने पर पुलिस के खिलाफ भारी जुर्माने आयद करने का इल्ज़ाम लगाया जाता रहा है और अवाम की जेब पर बोझ की शिकायत की जाती रही है। इसलिए पुलिस ने बाइक सवारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यह कदम उठाया है।